Hello student, I am Neha Miglani. Today I am going to cover the topic of exception to the law of demand. In my previous video, I have already discussed what is the law of demand, but there are certain exceptions in which the law of demand is not applicable. So today we are going to cover that exceptions to the law of the demand. Before starting my video, I just want to say that just get enrolled yourself in Divakar Education Hub for most reliable data in commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, and physical education. And get sample PDFs on Divakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. So it says that there is inverse relationship between the price of the commodity and the demand of the commodity. Exception means when there is opposite to this thing. Opposite means it is a universal phenomenon. It says that the fall in the prices, demand will rises and vice versa. But there are certain some exceptional cases in which the law of demand is not applicable. It means there is upward rising in the demand curve. Upward rises is due to rise in the prices and demand rises. It means when prices rises, demand also rises. When prices low, demand also low. It convert the demand curve in a upward shape. Let's see with the diagram. There are two axes, x-axis and y-axis. In y-axis we show the price of the commodity, and in the x-axis we show the demand of the commodity. When there is P1 prices, then there is X1 demand. When the price rise to P2, then the demand rise to X2. Then demand curve will shift upward. So it is also called positive slope of the demand curve. So what are that cases in which this thing happened? Now we are going to discuss this thing. How many factors that says that the law of demand is not applicable. So let's start. What are these factors? First one is speculative motive. Speculative motive means that कि स्पेकुलेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना. ऐसा किन केसेस में होता है? फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में होता है. ये शेयर मार्केट में क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट के शेयर की प्राइस राइज कर रही है तो कस्टमर जो है, इन्वेस्टर जो है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर में भी वो शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो राइज करेंगी और वो उनको बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, प्राइसेस जब राइज कर रही हैं तो मोर एंड मोर शेयर्स बाय करने शुरू कर देते हैं. शेयर ज़्यादा बाय करेंगे और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ज़्यादा शेयर खरीद के फ्यूचर में उनको सेल कर देंगे ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड. सो इन स्पेकुलेटिव डिमांड, rise in the price of the commodity create an impression among the buyers that the price will rise further. मतलब अभी प्राइसेस राइज किए हैं तो फ्यूचर में भी प्राइसेस जो है वो राइज करेंगे. सो दे आर स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर शेयर. This is called speculative demand. Next, snob appeal or Veblen goods. Our exception of the law of the demand is basically given by Veblen economics. Veblen economics जो है उन्होंने ये वैसे exceptions of law of demand दिए हैं. So what is snob appeal or what is Veblen goods? Snob appeal and Veblen goods means people buy certain commodities like diamonds. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि पीपल जो है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड खरीद रहे हैं चाहे उसकी प्राइसेस बढ़ रही है. वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अपना स्टेटस शो करे मार्केट में कि हम लोग रिच हैं और रिच पीपल्स की जो हॉबीज़ होती हैं, हैबिट्स होती हैं, हम भी वही पहन रहे हैं. चाहे वो प्राइसेस उस प्रोडक्ट की बढ़ रही हैं चाहे कम हो रही हैं, डजेंट मैटर.
सो प्राइसेस बढ़ने पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड बाय करेंगे टू शो देयर स्टेटस इन द मार्केट. दिस इज कॉल्ड स्नोब अपील. नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस कमोडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वैबलन गुड्स. वैबलन, जैसे मैंने पहले कहा, स्नोमोबाइल को हम वैबलन गुड्स भी कहते हैं. वैबलन गुड्स किसके थ्रू है? इकोनॉमिक थॉर्स्टन वैबलन्स के थ्रू, जो ये बताते हैं हमेशा कि प्राइसेस बढ़ने पे डिमांड हमेशा बढ़ती है, प्राइसेस कम होने पे डिमांड हमेशा कम होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर्स. फर्स्ट वन दैट इज यूजिंग प्राइस एज एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी. हम प्राइस को एक पैरामीटर मान के चलते हैं क्वालिटी का. जितनी ज़्यादा प्राइस होगी हम उतना ही मान के चलते हैं कि क्वालिटी उस प्रोडक्ट की उतनी ही ज़्यादा होगी. जैसे हम लोग कार बाय करने जा रहे हैं, जिस कार की प्राइसेस ज़्यादा होगी हम लोग यही मानते हैं कि वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेटर है, उसकी क्वालिटी भी बेटर है, क्योंकि भाई उसकी प्राइसेस ज़्यादा है. बाकी सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं कि ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इकॉनमी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, गारंटी वारंटी कितनी है. हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ ये सोच के चलते हैं जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी भी बढ़ गया है, और जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो क्वालिटी भी उसकी लो है. तो इस वजह से भी जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. एक और एग्जाम्पल आ जाता है कॉस्टली बुक. जितनी ज़्यादा कॉस्टली होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी, और जितनी ज़्यादा लो प्राइस होगा उतनी हम उसको चीपर क्वालिटी में कंसीडर करके चलेंगे. इस रीज़न की वजह से भी हमारा डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोप करता है. नेक्स्ट है गिवन गुड्स. गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स मीन्स होते हैं इंफीरियर गुड्स. गिवन गुड्स जो नेम है वो सर रॉबर्ट गिवन के थ्रू दिया गया है, ठीक है, इन 19th सेंचुरीज में. गिवन गुड्स होते क्या है? हमें जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हम गिवन गुड्स बोलते हैं. जैसे पुअर पीपल्स है, वो पोटैटो से गुजारा ही कर सकते हैं क्योंकि वो बाकी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अगर पोटैटोज़ की प्राइस बढ़ भी जाए तब भी उनको उतनी ही डिमांड करनी पड़ती है. अदर फैक्टर्स हम नहीं इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है. तो इस चीज़ में हमेशा हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होना रहता है, ठीक है. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइसेस. कई बार क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो राइज करेंगे, तो इस वजह से भी अभी हम डिमांड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर में हम खरीदे पता ना खरीदे. जैसे इन एग्जांपल ऑफ अनियंस में क्या होता है कि अनियंस की हमें पता चल जाता है इन फ्यूचर में इसकी डिमांड अब जो इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है. हम जो इसका स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं इन करंट सिचुएशन में, जितनी इसकी अब इतनी प्राइसेस है वहीं पे उसका स्टॉक बाय करना शुरू कर देते हैं ताकि फ्यूचर में उसकी डिमांड हम कम कर सके. तो इस वजह से भी हमारे प्राइसेस बढ़ने पे हमारी डिमांड बढ़ जाती है. नेक्स्ट आ जाता है हाईली एसेंशियल गुड्स. हाईली एसेंशियल गुड्स को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड की सिचुएशन चली हुई है. कोविड की सिचुएशन में वेंटिलेटर्स की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोविड का मेन सिम्टम ही यही है कि हमें जो है हमारी जो पल्स है वो अप डाउन चलती है. उसको कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो अगर किसी पर्सन को कोविड है तो ऑब्वियसली तो उसके अगर वो ज़्यादा ही उस चीज़ से अफेक्ट हो चुका है तो उस पर्सन को चाहे वो जितनी भी प्राइसेस हो उसको वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन मशीन या ऑक्सीजन मीटर्स उनको चाहिए ही होते हैं. तो प्राइसेस डजेंट मैटर इन दैट केसेस. प्राइसेस चाहे बढ़ रही हैं तो डिमांड तो भी बढ़ेगी. नेक्स्ट आ जाता है हमारा फीचर. इस केसेस में हमें क्या करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे इसको. जैसे इसमें क्या है, डिमांड हमारी बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है. प्राइस डजेंट मैटर, चाहे प्राइसेस P2 थी, चाहे प्राइसेस P1 थी, चाहे प्राइसेस P3 क्यों ना हो जाए, पर डिमांड उतनी की उतनी ही हमारी रहती है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिमांड फॉर द हाईली एसेंशियल गुड्स. नेक्स्ट है बैंड वैगन इफेक्ट. बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरे के पास कैसी चीज़ है मेरे को भी वो चीज़ चाहिए.
हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स के पास कौन सी गुड्स अवेलेबल है, हमने भी वही चीज़ बाय करनी है। इसको हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। हम उन कमोडिटीज़ को बाउट करेंगे या ख़रीदेंगे जिसकी जो डिमांड है दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। जैसे स्मार्टफोन की एग्जांपल आ जाती है, बहुत सारे पीपल कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, हम भी वही स्मार्टफोन बाय करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट है एमरजेंसीज के केसेस में, लाइक फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, इन केसेस में भी जो है प्राइसेस बढ़ती ही है ऑटोमेटिकली और उनकी डिमांड भी बढ़ती रहती है, ठीक है। So this is all about my today's topic, and I hope you will all understand what are the exceptions, what are the reasons in which the law of demand is not applicable. Thank you so much. Let's start our topic. What are the exception of the law of the demand? Exception means what are the cases in which the law of the demand is not applicable. So before starting the exception, we just revise what is the law of demand. Law of demand means when there is rise in prices, then there is a fall in the when there is rise in prices, then there is a fall in the demand. When there is the fall in the prices, then demand will rise.